الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی قاعدہ کا مہینہ. اس مہینے کے بعد میں ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے گا، جس میں تمام کے تمام مسلمان قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اور یہ جو 3 مہینے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی قاعدہ کا مہینہ اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کے 10 دن، ان دنوں کو اشہر حج یعنی حج کے مہینے. اللہ کے بہت سے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وسعت سے نوازا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے سعودی عرب جا سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں. اللہ ان کے اوپر حج کو فرض کر دیتا ہے. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر اللہ نے آپ کو اتنی وسعت سے نوازا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کو حج کرنا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کو اللہ نے وسعت دی ہے. نماز ایک عبادت ہے، لیکن نماز کے اندر کوئی یہ فرق نہیں ہے صرف مالدار پڑھیں گے یا غریب پڑھیں گے، بلکہ نماز ایسی عبادت ہے کہ ہر ایک کو پڑھنا ہے، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں، مال ہو نہ ہو، اس میں پیسے کی کوئی بات بھی نہیں، نماز پڑھنا ہے. اسی طریقے سے روزے رکھنا ہے. جس کو شرعی عذر نہ ہو، بیمار نہ ہو، تو اس کے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے. لیکن یہ جو حج والی عبادت ہے، اس کے لیے شرط لگا دی کہ اللہ نے اگر آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ فلائٹ کا ٹکٹ برداشت کر سکتے ہیں، جہاز سے جا سکتے ہیں وہاں تک، اور پھر جتنے ایام وہاں پہ رکیں گے اتنا بھی خرچہ آپ کے پاس ہے، اور اسی طریقے سے وہاں سے اپنے گھر بھی واپس آ سکتے ہیں، اور جن ایام میں آپ نہیں رہیں گے ان ایام میں جو گھر کا خرچ ہے وہ بھی آپ برداشت کر سکتے ہیں. تو ایسے شخص کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ہم لوگ جس طریقے سے نماز کو سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، روزے کو سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے حج بیت اللہ بھی ہر اس انسان کے اوپر جس کو اللہ نے وسعت سے نوازا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. اب ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنی وسعت آ جاتی ہے تو ہم یوں ہی اپنے اوپر شرائط کو عائد کر لیتے ہیں، جن کی شریعت سے کوئی اصل نہیں، شریعت سے جن کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی میرے پاس پیسے ہیں تو ابھی میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی بھی شادی نہیں ہوئی. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی ہم پہلے ایک 4 ویلر خرید لیں، ایک ٹرک خرید لیں، اس کے بعد بھی ہم حج کرنے جائیں گے. یاد رکھیے یہ سب شیطان کی طرف سے دھوکے ہوا کرتے ہیں، ان کی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے لیے حج بیت اللہ کریں گے، حج کرنے جائیں گے، پھر ہم واپس آئیں گے تو کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے کہ کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حج سے پہلے اس کو اللہ نے مال دیا ہو، حج کرنے گیا ہو، اور حج کرنے کے بعد وہ کمزور یعنی غریب ہو گیا ہو. ہم لوگ کیونکہ شیطان ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، 6 لاکھ روپے ہیں، آپ ان کو وہاں پہ خرچ کر دیں گے، پھر آپ کے پاس بچے کیا؟ آپ اپنی بیٹی کی شادی کہاں سے کریں گے؟ اپنے بیٹے کی شادی کہاں سے کریں گے؟ آپ کو اللہ نے جن چیزوں سے نوازا ہے، اور پھر آپ دوبارہ سوچیں گے کہ میرے پاس وہ چیزیں آ جائے تو کہاں سے آ جائیں گے جب آپ خرچ کر دیں گے. یاد رکھیے یہ شیطان ہم سب کے دلوں کے اندر ایک طرح کا وسوسہ اور یہ دھوکہ ڈالتا ہے. اس لیے شیطان کے بہکائے میں نہیں آئے. اگر اللہ نے ہمارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، اگر ہمارے پاس اتنی وسعت ہے تو ضرور کرنا چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اب بعض لوگ ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ جو نوجوان طبقہ ہے اللہ نے اس کو وسعت سے نوازا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہماری حج کرنے والی کوئی عمر تھوڑی ہے، اب جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم حج کریں گے. یاد رکھیے اللہ کو جو جوانی کی عبادت پسند ہے وہ بڑھاپے کی اتنی نہیں.
नौजवानी की इबादत अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए अगर नौजवानी के आलम में अल्लाह ने किसी को वसात से नवाजा है तो उसके ऊपर हज फर्ज हो जाएगा, उसको फौरन करना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तअज्जलू इलल हज्जी अल फरीज़ा फइन्न अहदकुम ला यदरी मा यारिज़ु लहू, कि अगर वसात हो जाए तो हज करने में जल्दी करो, ताखीर ना करो। आपको अंदाजा नहीं है कि आप बूढ़े होने तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। हो सकता है आज सही सालिम है और कल हो सकता है आपको अल्लाह कोई ऐसी बीमारी दे दे जिसकी वजह से आप चलने से भी कासिर हो जाए। आप माजूर हो सकते हैं, आप बीमारी आपके लाहिक हो सकती है। तो इसलिए अगर आज अल्लाह ने मौके से नवाजा है, आज अल्लाह ने मौके से नवाजा है, तो अजीजों हम सब के लिए हज करना फर्ज हो जाएगा, फर्ज हो जाएगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारी बेटी की शादी नहीं हुई, ये बहाना नहीं चलेगा कि अभी मेरा घर बहुत अच्छा नहीं बना है, ये बहाना नहीं चलेगा कि अभी मेरे भैया की शादी नहीं हुई। याद रखिए ये सब शैतानी धोखे करते हैं। जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, नमाज तो बार बार फर्ज है, दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना है, रमजान के रोजे हैं, हर साल 1 महीने के रोजे आते हैं, ज़कात देना है, हर साल देना है। लेकिन हज वाली जो इबादत है जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा फर्ज है। इसलिए अगर एक मरतबा वाली इबादत को हम अगर इखलास के साथ ना कर सके तो याद रखिए फिर हम चाहे हर साल हज करते रहे, वो नफली हज होंगे। असल हज जो पहला वाला हज होता है वो फर्ज हज होता है। आमतौर पे हमारे मुआशरे के अंदर ये होता है कि जो हज करने भी जाते हैं तो उनकी नीयत दुरुस्त नहीं, नीयत के अंदर फसाद, इस तरीके के उनके अंदर दिखलावा पैदा हो गया, उनके अंदर दिखलावा इस तरह आ गया। क्योंकि नमाज के अंदर किसी को ज्यादा तकब्बुर नहीं आता है, क्योंकि नमाज आप भी पढ़ते हैं, नमाज ये भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें तकब्बुर की कोई बात नहीं। तकब्बुर उन चीजों के अंदर ज्यादा आता है कि तमाम इंसान जिस चीज को नहीं कर सकते हैं आप वो काम कर सकते हैं, तो उसमें तकब्बुर ज्यादा आता है। तो हज करना, अब यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, बहुत मुश्किल से 2-3 एक दो हो सकते हैं कि हज कर चुके हों या हज करने की सोच रहे होंगे। इरादा तो सबका होता है, लेकिन अल्लाह ने जिसको नहीं नवाजा है तो कहां से करे, तो उसके ऊपर चूंकि फर्ज नहीं। लेकिन जिसके ऊपर फर्ज हो चुका है तो खुश दिली के साथ, इखलास के साथ करना चाहिए। अब हज करने से पहले पहले जैसे ही फार्म भर जाता है, तारीख आ जाती है, बददावतें शुरू हो जाती हैं, दिखलावा आ गया, माले के ऊपर माले पहनाए जा रहे हैं, उसके अंदर दिखलावा आ गया। अपने गांव के अंदर, अपने इलाके के अंदर वो इस अंदाज में चलता है, उसकी चाल के अंदर भी तब्दीली आ गई। वो ख्याल कर लेता है कि अब हम हज करने जा रहे हैं, अल्लाह ने इनको नहीं नवाजा, इनको नहीं नवाजा, इनको नहीं दिया, हम हज करने जा रहे हैं। उसके दिल के अंदर तकब्बुर आ गया। अल्लाह को तकब्बुर वाली इबादत बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए अगर अल्लाह ने वसात दी है और कोई हज करने जा रहा है तो इखलास होना चाहिए। नंबर 1 तो इखलास, हर काम के अंदर इखलास। दिखलावा अल्लाह को जर्रा बराबर पसंद ही नहीं है। दिखलावे वाली इबादत अल्लाह चेहरे के ऊपर फेंक देता, वापस कर देता है। ऐसी इबादत को अल्लाह को बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि फलन यरफुस वलन यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु। बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हज किया और इस अंदाज में हज किया कि उसमें कोई गुनाह का काम नहीं किया, कोई फहश बात नहीं की, तो वो हज करने के बाद इस अंदाज में वापस लौटेगा जैसा कि उस दिन जिस दिन उसकी पैदाइश हुई थी, बिल्कुल गुनाह से पाक साफ था। ऐसा ही वो हाजी जिसका हज कबूल हो जाता है। बहुत सारे हाजी हैं जो हज करने जाते हैं लेकिन उनके हज कबूल नहीं होते। वहां पे जो कंकरियां फेंकी जाती हैं, जमरा के ऊपर कंकरियां फेंकी जाती हैं, तो वहां पे एक मौजिजा अल्लाह तबारक व तआला ये दिखाता है कि लाखों लोग, 50 लाख लोग हर साल हज करने जाते हैं और 3 दिन तक बराबर कंकरियां फेंकते रहते हैं, 7-7 कंकरियां, और वो कंकरियां अपने आप से गायब हो जाती हैं। कोई वहां पे बाकायदा एहतमाम नहीं किया गया सरकार की तरफ से कि उन कंकरियों को हटाए, क्योंकि अगर कहीं एक गांव के आदमी किसी जगह कंकरी फेंके तो एक बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा। लेकिन वहां पे लाखों लोग कंकरियों को फेंकते हैं, रोजाना 7 कंकरियों को फेंकते हैं, उसके बावजूद वहां पे कोई ढेर नहीं होता। अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, उन कंकरियों को उठा ले जाते। गोया कि जिनका हज कबूल हो जाता है वो कंकरियां फरिश्ते उठा ले जाते हैं, बस मुख्तसर सी कंकरियां रह जाती हैं। ये उन बदनसीब लोगों की कंकरियां होती हैं जिनका हज कबूल नहीं होता, उन लोगों की वो कंकरियां रह जाती हैं। तो बहुत कम कंकरियां वहां पड़ी होती हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इंसान इतना खर्च करता है, 5 लाख 6 लाख खर्च करता है, फिर भी उसका हज कबूल नहीं।
तो अपने ऊपर जरूर गौर करना चाहिए कि क्या हमारे अंदर कमी है कि हमारा हज क्यों नहीं कबूल हुआ। जाहिर सी बात है, या तो हमारे अंदर रियाकारी आ गई, हम अपने आप को सब कुछ समझने लगे, अपने गांव वालों की नजरों में हम बहुत ऊंचे बन गए कि हम हज करने गए, हज करने जा रहे, हज करने के बाद वापस आएगा तब भी उसके अंदर एक तब्दीली, जो तब्दीली होनी चाहिए वो तो नहीं होगी, लेकिन दिखलावे वाली तब्दीली उसके अंदर पैदा हो जाती है और अपने आप को बहुत बड़ा वो समझने लगता है कि मैं हाजी हो चुका हूं। क्योंकि नमाज के अंदर तकब्बुर नहीं आता, रोजे के अंदर ज्यादा तकब्बुर नहीं आता, क्योंकि वो सब कुछ सब आदमी कर रहे होते हैं। तकब्बुर उन्हीं कामों के अंदर आता है जो सब लोग ना कर सके, कोई कोई करता हो तो उस इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है। इसी तरीके से जिलहिज्जा का महीना आ रहा है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर साहिब इस्तिताअत के ऊपर कुर्बानी भी फर्ज करार दी है, वाजिब करार दी है कि जिसके पास इस्तिताअत हो। इस्तिताअत का मतलब यानी जो साहिब निसाब हो, जिसके पास 52.5 तोला चांदी, याद रखिए निसाब 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत हो, या इसी तरीके से उसके पास माले तिजारत हो, या इसी तरीके से उसके पास नकद पैसे हो। 52.5 तोला चांदी यानी ग्रामों के एतबार से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी, जिसके पास इतनी चांदी हो या इतने पैसे हो, उसकी कीमत तकरीबन 1,20,000 या 25,000 बनती है। जो शख्स भी इतनी कीमत का मालिक है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के अंदर और ज़कात के अंदर दो बातों के अंदर फर्क है। ज़कात के अंदर तो यह है कि जो साहिब निसाब हो गया, यानी जिसके पास 1,20,000 25,000 रुपए आ गए तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई, लेकिन अभी फौरन फर्ज नहीं, बल्कि एक साल गुजर जाए, अब अगला साल जब आ जाएगा तब ज़कात देनी। लेकिन कुर्बानी के अंदर मसला ये है कि ये जो अय्याम कुर्बानी है, नहीं 10, 11, 12 जिलहिज्जा के अंदर अगर उसके पास इतने पैसे कहीं से आ गए तो उसके ऊपर फौरन कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा फर्क ये है कि हमारे घर में जो जरूरत से जायद चीजें होती हैं, जैसे घर में 3 बाइक हैं, एक बाइक इस्तेमाल होती है, बाकी एक खड़ी रहती, कोई उसको चलाने वाला ही नहीं, कभी उसका नंबर ही नहीं आता है, नई आ गई या तो किसी को जहेज में मिल गई या किसी तरीके से आ गई, वो कभी इस्तेमाल ही नहीं होती है, तो उस मोटरसाइकिल को भी जोड़ लिया जाएगा निसाब के अंदर। वो कीमत कितनी है, मान लीजिए 70,000 रुपए की मोटरसाइकिल है और किसी तरीके से उसके पास कुछ नकद पैसे हैं, कुछ चांदी है, तो तीनों चीजों को जोड़ने के बाद देखना है कि 1,20,000 या 30,000 पहुंच रहे कि नहीं। अगर इतना पहुंच गए तो कुर्बानी फौरन वाजिब हो जाएगी। साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर उसके अलावा कोई अमल सोचे कि हम ना उतना सदका कर दें, हम गरीबों में तकसीम कर दें, तो उसका बदल नहीं हो सकता है। अगर कुर्बानी फर्ज है तो उसी कुर्बानी ही को करना है। दूसरा मसला ये चलता है कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि जिसके घर में पहली कुर्बानी हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करें। यह मसला बहुत मशहूर है, हर जगह बहुत मशहूर है। यानी इससे पहले उसके घर में कुर्बानी नहीं हो रही थी, लेकिन अब पहली कुर्बानी हो रही तो ये ख्याल कर लेता है कि पहली कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हो। इस बारे में मसला याद रखें, शरई तौर पे मसला ये है कि अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई है और आप पहली कुर्बानी भी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने नाम पे करेंगे। अगर अपने नाम पे ना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर करें तो उसका सवाब तो मिलेगा, लेकिन अपने नाम पे ना करने की वजह से आप खुद गुनहगार होंगे। ये मसला अच्छे से समझ लें। आम तौर पे हर जगह हर इलाके में ये बहुत मशहूर है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए।